Good morning to you all, dear students. Today we are here to understand the accounting treatment of goodwill on retirement of a partner. And we'll be doing question number 12 to question number 16. We will be understanding all concepts of goodwill, though the concepts are very limited in this chapter, yet we have to understand all the concepts. Question of 3 to 4 marks is usually asked in the examinations. So we are going to understand the concept of goodwill. Retirement chapter में what you all have to remember, first of all we should understand the concept of goodwill. On the day of retirement, what is retirement, by the way? Retirement means reconstitution. On the day of retirement of a partner, on the day of retirement of a partner, goodwill of the firm is valued. Goodwill of the firm is valued. फर्म की गुडविल हम वैल्यूड करते हैं उस दिन. क्यों करते हैं? In order to pay the amount of share of goodwill of retiring partner. Amount of share of goodwill of retiring partner. क्योंकि फर्म की गुडविल बनाने में, मेंटेन करने में रिटायरिंग पार्टनर का भी कंट्रीब्यूशन होता है. तो रिटायरिंग पार्टनर का भी गुडविल में शेयर बनता है. तो ऑन दैट डे, जिस दिन उसका रिटायरमेंट होता है, गुडविल फर्म की वैल्यूड करी जाती है बाय एनी ऑफ द मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन. और गुडविल निकालने के बाद वी हैव टू पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन द कंसेप्ट ऑफ गुडविल. सो हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारी जर्नल एंट्री आएगी वो क्या आएगी कि जो पार्टनर रिटायर हुए हैं उनको शेयर हम पे करेगी फर्म. एंड विच पार्टनर्स आर गोइंग टू पे द शेयर ऑफ गुडविल? गेनिंग पार्टनर, जो भी उसके शेयर को गेन करेगा, बिकॉज उसने बिजनेस को अब लीव कर दिया है. एज द पार्टनर हैज टेकन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर बिजनेस को रन कर रहे हैं, हाउ मच ऑफ द टोटल share of him is taken over by the remaining partners. So gaining partner will compensate the money of goodwill to the retiring partner according to his share. तो gaining partner to retiring partner की journal entry हमें याद रखनी है. gaining partners capital account debit to retiring partners capital account. नरेशन आप इसकी सिंपल बना दीजिए. being, because this is an adjustment entry, so being adjustment entry passed for goodwill or being adjustment made for goodwill, right? This is how the goodwill entry is passed. तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे, ना कि रिमेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि रिमेनिंग में ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गेन ना कर रहा हो. ओनली वन पार्टनर इज गेनिंग द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. व्हाट वी हैव टू रिमेंबर हियर कि only in this particular entry, only in this particular entry gaining ratio is applicable. And what is the formula of gaining ratio? We know very well, new ratio minus old ratio. एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये याद रखना है, when the goodwill of the firm is valued, as we have just notified this point. तो जब भी कभी गुडविल फर्म की वैल्यूड करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स to pay the share of the retiring partner. तो goodwill of the firm whenever it is valued, जर्नल एंट्री जो आप पास करोगे वो क्या पास करोगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. कब करेंगे? जब गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड होगी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, राइट? सेकेंड कंसेप्ट हमें और समझना है. इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, वो तो एक पॉइंट है जो आप रिटायरमेंट एडमिशन से भी सीख कर आए हो. व्हाट इज दैट? व्हेन goodwill account already appears in the books, already appears या exist in the books or exists in the books. Books means balance sheet. अगर balance sheet में पहले से goodwill है, तो how to deal with goodwill? Simple.
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कौन होंगे? ऑल द पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट ऑफ करने की एंट्री वही रहेगी जो गुडविल में आती, इसमें एडमिशन में आती थी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में गुडविल को क्या कर देंगे हम? राइट ऑफ। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल विल बी डन. Now children, what you have to understand is these 2 points only you have to remember till death of a partner. तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर दोनों में अगर आप देखोगे तो सिर्फ यही दो कंसेप्ट आपने लर्न करने हैं, एक गेनिंग टू रिटायरिंग और दूसरा है गुडविल का राइट ऑफ करने का, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, एंड दैट्स ऑल इन योर चैप्टर ऑफ गुडविल. तो गुडविल में फुल मार्क्स लाना सबसे इजी है when you have to only and only do two entries, gaining to retiring and old partners to goodwill. Okay, so in order to understand these two concepts in detail, let us see what is there in our book. And we have question number 12 to question number 16 which we are going to cover up in this class. Question number 12 you can see now. Sunil, Shahid and David are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. Shahid retires and goodwill of the firm is valued at 72,000. Now this partner, middle one, is going to retire. Calculate शाहिद का शेयर ऑफ गुडविल. तो हम शाहिद का शेयर निकाल देंगे 72,000 में से अकॉर्डिंग टू हिज शेयर, एंड पास द जनरल एंट्री फॉर गुडविल. Sunil and David decided to share future profit and losses in the ratio of 5:3. This is the new ratio given in the question. Old ratio given, new ratio given. What we are supposed to calculate, you can tell me, gaining ratio. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अगर न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो गिवन होती है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं. रिटायरमेंट में अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन होती है तो कौन सा रेशियो निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग, सॉरी, गेनिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग इज कैलकुलेटेड इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो यहां पर हमें उसने वही बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट. जैसे ही आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है. तो जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, शाहिद का शेयर, उसको कॉम्पनसेट करेंगे सुनील एंड डेविड. दिस इज वॉट वी हैव टू शो एज ए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 12. There are three partners. One is Sunil, second is Shahid, and third is David. As mentioned in the question, their old ratio is given 4:3:2, right? And goodwill of the firm is valued at 72,000, which we always know that it is valued for the purpose of giving compensation to the retiring partner, as he has also contributed in making this goodwill and making firm known to the people. So goodwill में उसका भी contribution है. He will also be getting the share. Who is the retiring partner? Shahid. So Shahid has taken the retirement. This partner has gone out, and the new ratio between the remaining partners, Sunil and David, is agreed at what? 5:3. This is the new ratio. So old ratio given and the new ratio is also given in the question. When old and new both are given, we need to calculate gaining ratio. And what is the formula of gaining ratio? You know very well, it is just the opposite of sacrificing ratio. So new ratio minus old ratio is the formula to calculate gaining ratio. Let us see how to calculate the gaining ratio for Sunil and for David. तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि हम रेशो कैलकुलेट कर लें, और वी शुड नो कि इन व्हाट रेशो दे आर सपोज टू कॉम्पनसेट. उसी रेशो में कॉम्पनसेट करेंगे जिस रेशो में इन्होंने गेन किया है. तो 4/9 ओल्ड, 2/9 ओल्ड. इफ आई कैलकुलेट, इट इज 72 एज ए LCM. 45 minus 8 4s are 32.
So 13 by 72, and it is coming 27 minus 16, 11 by 72. You can say the gaining ratio is how much? Gaining ratio is 13 ratio 11. Okay. After gaining ratio, after calculating gaining ratio, calculate Shahid's share of goodwill. तो शाहिद का शेयर भी हमें अब नोन हो जाएगा. 72,000 फॉर्म की गुडविल है. शाहिद का शेयर बिजनेस में कितना था व्हेन ही वाज अ पार्टनर? 3/9. So that means 24,000 is the share which other partners are going to pay off to retiring partner. तो दिस वाज द वर्किंग नोट. हमें वर्किंग में दो बातें याद रखनी है, एक रेशो निकालना है और एक उसका क्या निकालना है? शेयर. देयर आफ्टर वी विल पास द जर्नल. तो जर्नल क्या होगा हमारा इसका? सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट. सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट. Number one, who else is going to pay? The another gaining partner is David. So David capital account debit, David's capital account debit, and who is going to get this money? It is the retiring partner to Shahid capital account. So students, simply we are able to solve this question, and how much Shahid will get according to his share, which we have recently calculated 24,000. In which ratio, sir, it is? 13 ratio 11. That means 13 by 24. So easy to calculate. It is 13,000 and 11,000. Question done. Being adjustment made for goodwill. Simply, it's a mutual adjustment that okay, we debit our capital accounts for your share of goodwill. We reduce Sunil and David, and Shahid will get the money. So adjustment for goodwill has been made, or you can say the compensation has been given by Sunil and David to Shahid. Simple to understand question. I am confident that you will be able to solve these questions very easily on your own. Question number 13th now. So what does question number 13 say? Let us pay attention. PQRS are partners sharing profit in the ratio of 5:3 ratio 1:1. तो 5311 रेशो है हमारा. On 1st January 2024, S retired. The last one got retired. On S retirement, goodwill of the firm was valued at 4,20,000. Goodwill of the firm valued देखते ही आप क्या समझ जाएंगे कौन सी एंट्री करनी है? Gaining to retiring. Very good. The moment you look into the question that goodwill of the firm is valued on retirement means compensation has to be given by the remaining partner, the gaining partner. After that, new ratio is also given of PQR. So new ratio given, old ratio given, दोनों रेशो हमको दे रखी हैं. What we are bound to calculate, गेनिंग रेशियो निकालना मैंडेटरी है हमारे लिए. बिना गेनिंग रेशियो निकाले हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते. शोइंग ए वर्किंग नोट क्लियरली, पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन एस रिटायरमेंट. सीबीएसई 2017 मॉडिफाइड क्वेश्चन. तो बोर्ड का क्वेश्चन है ये. A good question in front of you. Let us solve this question. Question number 13th. Let us see who are the partners. P, Q, R and S चार partners थे. What was their ratio? 5:3:1:1. Mentioned clearly in the question. This was the old ratio. And S got retired. Last one. So their new ratio. This was their old, and their new ratio between PQ and R was agreed at 4:3:3. क्या बताया हमने आपको फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप चिल्ड्रन? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो. वेरी गुड, you remembered it so well. What is the formula of gaining ratio? New ratio minus old ratio. Which partners? P, Q and R, because S is the retiring partner. 4/10, 4:3:3 ratio है तो 4:10, 3:10 and 3:10. So simple to calculate. And then we will be calculating, writing the old ratio. 5/10, 3/10, 1/10. If I calculate the answer of the first person, that is P, I am getting negative. Negative means it used to be gain in the case of admission, but अगर हमारा gaining ratio negative आता है students, तो it is the sacrifice.
यानी कि पी ने भी अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है। एस तो पार्टनर बिजनेस छोड़कर चले गए, इनका तो फुल सेक्रीफाइस है, दैट 1/10 पूरा दे दिया। एक पार्टनर पी है जिन्होंने अपना शेयर को सेक्रीफाइस किया है। अब सेक्रीफाइस ऑब्वियसली ये किसके फेवर में करेंगे, क्यू एंड आर के। तो क्यू एंड आर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये पी को भी पेमेंट करें। एस को तो पेमेंट मिलेगी ही, पी को भी पेमेंट मिलनी चाहिए। तो 4 - 5 इज -1/10। इफ यू कैलकुलेट सेकंड वन, यू आर सरप्राइज टू सी कि 3 - 3 3/10 3/10 था, तो क्यू का शेयर विल रिमेन अनचेंज अनअफेक्टेड, नो चेंज इन क्यूज शेयर। सो सिंपल। And you, if you look at the question and you find that about Mr. R, 10 is the LCM, 3 - 1, 2. That means R is the only gaining partner. Okay. अब नेगेटिव आ जाए हमारा, यानी कि सेक्रीफाइस आ जाए इंस्टेड ऑफ गेन, तो एंट्री तो हमारी वही रहेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में हमारे रिटायरिंग भी आ जाएंगे, गेनिंग टू रिटायरिंग में, और सेक्रीफाइसिंग भी क्रेडिट हो जाएंगे। तो अब हमें सिर्फ एस का शेयर नहीं निकालना है। एस का शेयर तो हमें निकालना ही था बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट पर अगर एस ने, शेयर था उनका 4,20,000, फर्म की गुडविल थी, और एस का शेयर बिजनेस में था 1/10 एज मेंशन्ड इन द ओल्ड रेशो। तो अगर आप देखोगे तो 42,000 तो एस को मिलना ही था एज ए रिटायरिंग पार्टनर बिकॉज ही लेफ्ट द बिजनेस फॉर एवर। नाउ वी हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट पी का शेयर। क्यों निकालना पड़ेगा? बिकॉज ही विल ऑल्सो बी गेटिंग द कंपनसेशन। फॉर्म की गुडविल में से कंपनसेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड शेयर, न्यू शेयर और सेक्रीफाइस शेयर। एब्सोल्युटली राइट, अकॉर्डिंग टू सेक्रीफाइस शेयर, जो कि आ रहा है -1/10। तो माइनस को हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, बेसिकली तो वो 1/10 है। You can easily make out that P is also eligible to get how much amount? 42,000। दोनों को 42 मिलना चाहिए। R को इसलिए, S को इसलिए कि he is getting basically because of the retirement S को, और P को किस लिए मिलना चाहिए? because of the sacrifice। और पे कौन करेगा? दैट इज द $1,000,000 क्वेश्चन। ओनली एंड ओनली R, बिकॉज Q के शेयर में कोई चेंज नहीं आया है। R is the only man who is in a gaining situation. So, in this situation, children, please remember gaining partner to sacrificing partner to retiring partner entry आनी है। Q का remain unchanged, तो Q कहीं भी entry में दिखाई नहीं देगा। What shall be the journal entry, students? So, who will pay to whom? Q is going to compensate. Sorry, R is going to compensate because R is the only sacrificing partner. तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एब्सोल्युटली राइट। गेनिंग पार्टनर जो भी होगा, ही इज गोइंग टू पे द मनी टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एज वेल एज टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है हमारे? पी, जो बिजनेस में अभी एग्जिस्ट करता है और अपना शेयर उसने सेक्रीफाइस कर दिया है आर के शेयर, आर के फेवर में। देखिए, पी का जो सेक्रीफाइस है वो 1/10 है, और आर का जो सेक्रीफाइस है वो 2/10, यानी कि आर ने एस का भी गेन किया है 1/10 और पी का भी गेन किया है 1/10। तो 1/10 अगर दोनों अगेन ऐड कर दिए जाएं तो इट इज कमिंग 2/10। तो आर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पी को भी कॉम्पनसेट करे और एस को भी उसके गेन के अकॉर्डिंग कॉम्पनसेट करे। बताएं आप, हाउ मच इज द शेयर ऑफ पी अकॉर्डिंग टू हिज सेक्रीफाइस कमिंग आउट टू बी 42, एंड एस का शेयर भी 42 ही था। तो P and S both will get 42 42. Total money to be paid by Mr. R will be 84,000। तो एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी है गुडविल की। नेगेटिव आने की सिचुएशन में अगर कोई हमारा रिमेनिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर हमारे बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे, अगर उसका किसी का नेगेटिव आता है, सेक्रीफाइस आता है, तो उसको भी क्रेडिट मिलता है। तो वी हैव डन दी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। So this is the adjustment entry for goodwill, children, which we have to remember in the exam। और ये माइनस वाला जो कंसेप्ट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, बहुत ही कॉमन पॉइंट है, विच इज ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर इन द एग्जामिनेशन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स। रिटायरमेंट में Aparna, Manisha, and which partners? Who are the partners who are sharing business? Aparna, Manisha, and Sonia are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Manisha retired from the firm
एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट। तो अगर वैल्यूड हो रही है फर्म की गुडविल तो कौन सी एंट्री आनी है? गेनिंग टू रिटायरिंग। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हमें न्यू रेशियो गिवन है 3:2, हमें ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2:1, दोनों रेशियो गिवन है। कौन सी रेशियो निकाल लोगे आप? गेनिंग रेशियो। वेरी गुड। तो अगर आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना जानते हो कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके गेनिंग रेशियो आ जाती है, तो फटाफट निकाल के बताइए व्हाट इज द गेनिंग रेशियो कमिंग अप टू बी। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो व्हाट यू आर सपोज टू डू, शेयर निकालेंगे रिटायरिंग पार्टनर का और आंसर आ जाएगा सर, दैट्स ऑल। तो अगर इसको मैं सिंपली यहीं पर ही आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो आप लोग समझ जाओगे कि ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है जिसको हमें मेहनत करके इतना कोई इसमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। न्यू रेशो 3:5 दे ही रखी है आपको। एक मैं रफ में कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आपको। न्यू रेशो इज गिवन 3:5। ओल्ड रेशो गिवन है, पार्टनर रिटायर जो हो रहे हैं हमारे, वो मनीषा रिटायर हो रहे हैं, द सेंटर वन द मिडल वन। तो 3/6 एंड 1/6 अगर हम करके देखते हैं तो आप देख पाओगे कि 18 माइनस 15 इट इज कमिंग 3/30 एंड दिस इज 12 माइनस 5 7/30। तो जो हमारा गेनिंग रेशो आएगा वो 3:7 आएगा। और इसी रेशो में, इन द सेम रेशो, पार्टनर हमारे अपर्णा और सोनिया जो है पे ऑफ करेंगे किसको? रिटायरिंग पार्टनर मनीषा को। और मनीषा का शेयर कितना आ जाएगा? आप देख सकते हो मनीषा का शेयर। फॉर्म की गुडविल कितनी है? 1,80,000। मनीषा का शेयर कितना था बिजनेस में? 2/6 दैट इज 60,000। तो इस 60,000 को कौन पे करेगा? अपर्णा एंड सोनिया। एंड हु विल रिसीव दिस मनी? मनीषा। तो इस 60,000 को अब दोनों अगर रिसीव करेंगे तो 3:7 का मतलब हो गया 10 एंड 18 एंड 42,000 से हमारी एंट्री हो जाएगी। अपर्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीषा कैपिटल अकाउंट। आई एम कॉन्फिडेंट दैट you can do it without any solution and without any support because concept must be clear to you. So that is why I'm just erasing this calculation and you do it on your own. तो ये बड़ा ही इजी कंसेप्ट है चैप्टर का। एडमिशन की गुडविल चैलेंजिंग हो सकती है बिकॉज देयर आर सिचुएशंस आर मैनी, बट इन रिटायरमेंट सिचुएशंस आर लिमिटेड। सो चिल्ड्रन, यू विल नॉट फेस मच प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चंस। 15th क्वेश्चन देख सकते हो उसके बाद आप। सिमिलर क्वेश्चन बनाया है। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बी रिटायर्ड एंड द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी was agreed at what amount? ए एंड सी 2:1। सेम क्वेश्चन है, देखिए ये भी वही बिल्कुल सेम टू सेम। बी रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड हो गई कितने पर? 90,000 रुपीज। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट। इफ वी लुक इनटू द कंसेप्ट इट सीम्स टू बी वेरी वेरी इजी। तो इसमें भी कुछ एज सच लर्न करने के लिए कुछ नहीं है। क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो निकालेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे और एंट्री पास कर देंगे विद व्हाट? शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। इफ यू वांट तो आई कैन शो यू द कैलकुलेशन, अदरवाइज बिलीव इट, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने की हमें कोई सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नज़र आती नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको हेल्प के लिए दिखा देता हूँ। गेनिंग रेशो पार्टनर ए एंड सी का निकालेंगे। ओल्ड रेशो गिवन है हमको कितना? 3:1 दैट मीन्स 3/6 एंड 1/6। और बी ने रिटायरमेंट लिया और न्यू रेशो अग्रीड होती है 2:1 दैट मीन्स 2/3 एंड 1/3। बड़े ही प्यार से आप लोग निकाल लोगे। 3 - 4 सॉरी 6 - 4 3 - 4 या 3 - 4 3/6 सॉरी इट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हमने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर दिया, इट इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो देखिएगा सिंपल था। 3/4 2/3 एंड 1/3 हमें दे रखा है रेशो। तो इसमें आपको न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, फॉर्मूला लिखोगे देखो तो अलर्ट भी रहेंगे आप लोग। 2/3 माइनस 3/6 एंड 1/3 माइनस हाउ मच? 1/6। If you calculate, तो 4 - 3
it is going to be 1 by 6, and if you calculate for second partner 2 minus 1, it is 1 by 6. So we are getting the ratio as 1:1. फटाफट एंट्री बना देंगे बी का शेयर निकाल के. बी का शेयर बिजनेस में गुडविल फॉर्म की हमको गिवन थी 90,000. बी का शेयर है इसमें 2 by 6. So children, it will be 30,000. This 30,000 who will compensate? A and C in their gaining ratio. So gaining ratio was 1:1. A and C will compensate to partner B. तो पार्टनर बी को उनके शेयर के अकॉर्डिंग कॉम्पनसेशन मिलेगा 30,000 का, और ए विल पे अकॉर्डिंग टू गेन, नॉट एज पर ओल्ड रेशो, अकॉर्डिंग टू गेन. तो गेनिंग रेशो वॉज 1:1, 15-15 करके गुडविल को हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट. सिंपल टू अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम्स. लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका. अमल, बिमल एंड दीपक शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 37,500. सिंपल पॉइंट है. अमन रिटायर्ड, बिमल एंड दीपक डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली. इक्वल आ गया हमारा न्यू रेशियो आफ्टर अमन्स रिटायरमेंट. कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस ऑफ ऑल द पार्टनर्स and on Aman's retirement, and also give journal entry for the treatment of goodwill. Similar questions हैं सारे, तो कोई बड़ा इसमें चैलेंज नहीं है. You can very comfortably, conveniently solve all these questions. In this question, if you look into, so there are Aman, Bimal and Deepak. So Bimal and Deepak are the remaining partners. For them, we will quickly in the examination calculate the gaining ratio. Gaining ratio होता है new ratio minus old ratio, and new ratio हमको क्वेश्चन में clearly given था equal. तो 1:1/2, that is equal share. और बिमल और दीपक आफ्टर अमन रिटायरमेंट, बिफोर अमन रिटायरमेंट, उनका शेयर हुआ करता था 2:3:5, तो 3/10 and 5/10. It will be 10. 5 minus 3, how much it will be? 2/10. And if I calculate this, 5 minus 5, you will be finding 0/10. No sacrifice, no gain. So Deepak will not be shown anywhere in the journal. Why? Because he is maintaining the same share. पहले भी 1/2 था, अभी भी 5/10 यानी कि 1/2 ही मेंटेन किया. नेक्स्ट, अब अमन हमारे रिटायरिंग पार्टनर हैं, तो हम क्या निकालेंगे? हाउ मच शेयर ऑफ गुडविल अमन विल गेट. तो अकॉर्डिंग टू हिज शेयर विच यूज टू बी 5/10, और यू कैन से 2/10, बिकॉज ओल्ड शेयर वॉज 235. तो अमन फर्स्ट पार्टनर थे, तो 235 मीन्स 2/10, और 2/10 शेयर निकालेंगे इनका 37,500 में से, विच विल बी कमिंग 7,500. तो ये 7,500 हु विल पे टू whom? Undoubtedly, Bimal will pay to Aman. Why? Why not Deepak? Because Deepak is neither sacrificing nor gaining. So, what will be the entry? Deepak, Bimal capital account debit. Bimal's capital account debit to Aman's capital account. Bimal to Aman. Name may be sometimes confusing. If it is ABC, I can make out. But when the names are little confusing, children may do some mistake. So 7,500 will be paid by Bimal to Aman. This is the entry, and this is how you can finish up with your first part of retirement exercise. And immediately after this, we will have the next session. In that session, we'll be understanding two more things: hidden goodwill, and when one or more of the remaining partners sacrifice, right? So I hope this session, the basic of the goodwill session, was fruitful for all of you, and you will be able to take a grip over the basic concept which will be used in the partners capital account preparation and long answer questions. Okay, so all the very best. Thank you.